عمران نیازی کی گالی گلوچ کا جواب ترقیاتی منصوبوں سے دیں گے، دن رات محنت کر کے ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر اور کروڑوں نوکریوں کے وعدے کیے مگر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ خیبر پختونخوا کو اگر حقیقی ترقی دلانی ہے تو جھوٹے شخص سے سیاسی نجات حاصل کرنا ہوگی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا مانسہرہ میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب۔ مانسہرہ اور گرد و نواح کی ترقی کے لیے 1 ارب روپے کے پیکج، ہزارہ الیکٹرک کمپنی اور میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان۔ بیانیہ 2 نمبر، جعلی خط 2 نمبر۔ انقلابیوں کا لیڈر عمران نیازی بھی 2 نمبر ہے۔ عوام نے فتنہ مارچ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر مسترد کر دیا۔ انقلاب سرکاری ہیلی کاپٹر اور گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آتا، جتنا بھی لانگ مارچ کرے حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ سابق حکومت نے عوام کو جو زخم لگائے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ان پر مرہم رکھیں گے۔ پنجاب کی تقدیر بدلی، اب وہ پاکستان کی قسمت بھی بدلیں گے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ مانسہرہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، پارٹی پر جب بھی مشکل وقت آیا ہزارہ ڈویژن سب سے آگے رہا۔ عمران خان ذاتی مفادات کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر رہی ہیں۔ عمران خان پشاور میں چھپنے کی بجائے عوام کا سامنا کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں امیر مقام مرتضیٰ جاوید عباسی، سردار محمد یوسف اور دیگر کا مانسہرہ جلسے سے خطاب۔ 4.25 سال سے رکا ہوا پاکستان کی ترقی، تعمیر اور عوامی خدمت کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم نے مانسہرہ میں خواتین یونیورسٹی، ہزارہ مظفر آباد موٹر وے، ہسپتال اور اسکولوں کے قیام سمیت متعدد منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک ہی نعرہ ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون آئے، پنجاب جیسی ترقی خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنا شروع۔ ٹرن آؤٹ 30 سے 35% رہا۔ 16,165 امیدواروں کے درمیان مقابلہ، 132 خواتین بھی شامل۔ عمران خان نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے این آر او مانگا۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو ٹیپ عمران خان کی اصلیت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی گھڑی گئی، ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ دھمکیاں دینے والے اب منتے، ترلے اور واسطے دے رہے ہیں۔ دوسروں کے بچوں کو سڑک پر بے آسرا چھوڑ کر باس اور چپڑاسی دونوں میدان سے بھاگ گئے۔ 11 جماعتوں نے سیاسی بدروحوں کے علاج کی ڈیوٹی مجھ خاکسار کو دی ہے، آپ آئیں تو صحیح۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن، پاکستان 1960 سے امن مشنز کا حصہ، 2 لاکھ سے زائد پاکستانی فوجیوں کی خدمات، اب تک 169 پاکستانی فوجی جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستانی امن دستوں کی کاوشوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ پاکستان بھارت آبی تنازع، 2 روزہ مذاکرات کل سے نئی دلی میں ہوں گے۔ انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی پاکستانی وفد بھارت پہنچ گیا۔ دریائے چناب پر بنائے جانے والے بھارتی منصوبوں اور سیلاب کی پیشگی اطلاع کے معاملات پر بات چیت ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی جدوجہد آزادی پر فخر ہے۔ مسئلہ کشمیر پورے ملک کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ کشمیریوں کے دکھ درد میں ساتھ ہیں، ہر حال میں کشمیریوں کی جدوجہد کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قائرہ۔ بھارت مقبوضہ کشمیری خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ 1990 سے اب تک اجتماعی زیادتی اور بدسلوکی کے 11,255 واقعات رپورٹ ہوئے۔ قابض بھارتی فوج کی درندگی کا نشانہ بننے والی خواتین تاحال انصاف کی منتظر۔ بھارت میں حجاب تنازع ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ کرناٹک کے کالج کی انتظامیہ نے حجاب پہن کر آنے والی متعدد طالبات کو گھر واپس بھیج دیا۔ کمرہ جماعت میں صرف ان طلباء کو ہی داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی جو وردی پہن کر آئیں گی۔ وزیر تعلیم کرناٹک۔ یورپی ممالک یوکرین کو بھاری ہتھیار فراہم نہ کریں، روسی صدر پوٹن کی فرانسیسی ہم منصب اور جرمن چانسلر سے ٹیلی فونک گفتگو۔
यूक्रेन की बंदरगाहों से गल्ला तरसील की इजाजत पर गौर का इंतज़ार। रूसी अफवाज की मशरकी यूक्रेन के इलाके डोनबास पर कंट्रोल हासिल करने के लिए पेशकदमी। लाइमान शहर पर कब्जा कर लिया। ईरान की जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन तैयारों के खुफिया बेस की मीडिया पर रोनुमाई। मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन तैयारों की नुमाइश। जमीन की गहराई से बने इस खुफिया मरकज के फाल होने से ईरान खित्ते का मुमताज ड्रोन पावर बन गया। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्मी। मौजो दाड़ो 49, लाड़काना जैकबाबाद 48, दादू शहीद बेनजीराबाद और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। तुर्की में वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज, पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट की उम्दा कारकर्दगी। क्वार्टर फाइनल में तुर्की के रेसलर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस्लामाबाद में चौथे पीटीवी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, 12 टीमों की शिरकत। वजारत इत्तलात और नशरियात की टीम ने पीटीवी वर्ल्ड की टीम को 10 विकेटों से हराकर टाइटल अपने नाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मानसेहरा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के हमरा एक बड़े जलसा आम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान खान की गालम गलोच का जवाब तरक्याती मंसूबों और नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप देकर करेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रियाज बरकी। मानसेरा के सरसब्ज पहाड़ों के दामन में तेज हवाएं मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का जोश ठंडा न कर सकी और वो मुसलसल अपने कायदीन के हक में नारे लगाते रहे। देखो देखो कौन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मकामी कायदीन और अवाम के मुतालबे पर इलाके के लिए एक जामे तरक्याती पैकेज और मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान किया। मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं। 1 अरब रुपए हजारा के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक कंपनी का जो मुतालबा किया जा रहा है, आपके इस हुक्म के ताबे मैं यहाँ पर हजारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि मैं आपको इसके ताकि आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। मेहनत करेंगे नवाज शरीफ की क़यादत में और खून पसीना घराएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। आज यहाँ पर मैं मानसेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि साबका हुकूमत ने 50 लाख घरों की तामीर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, मगर एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इमरान नियाजी की गालम गलोच का जवाब तरक्याती मंसूबों से देंगे। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं मानसेरा के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सस्ता आटा फराहम करने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। आज आखिरी मर्तबा मैं वज़ीर आला केपी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए
कोशिश करो और सस्ता आटा दो और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतों में इजाफा किया, ताहम साथ ही उन्होंने गरीब तबके का बोझ कम करने के लिए 28 अरब रुपए की माहाना सब्सिडी दी, जिससे 8 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर बालाकोट और दरबंद के लिए गैस की फराहमी, ख़वातीन यूनिवर्सिटी, हज़ारा मुजफ्फराबाद मोटरवे, 200 बेड के अस्पताल, सीवरेज सिस्टम और वाटर सप्लाई स्कीम समेत मुतअद्दिद मनसूबों का इफ्तिताह किया। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत से पंजाब की तकदीर बदली और अब पाकिस्तान को भी दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान के इंतशार और फितना मार्च को यकसर मुस्तरद कर दिया। मानसहरा में मरियम नवाज के जलसा आम से खिताब की तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। मरियम नवाज ने कहा कि मानसहरा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इमरान खान ने नाअहली से पाकिस्तान के सीने पर जख्म लगाए। इमरान खान ने जो जख्म लगाए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ इन पर मरहम रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इंतशार मार्च को मुस्तरद कर दिया। इंकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता, इंकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, इंकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। ये फितने का, फसादी का, इंतशार का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान लोगों को धरने का झांसा देकर खुद बनीगाला चले गए। इंतशार मार्च की नाकामी के बाद मिन्नतों पर उतर आए हैं। सुपर पावर को धमकी देने वाला पेशावर में छुप कर बैठा है। सरदारी साहब के पांव पड़ रहा था जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है, तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। मरियम नवाज ने कहा कि मईशत मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अवाम वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि उन्हें अपनी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क आगे बढ़ेगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मानसहरा हमेशा मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से कामयाब होगी। सरदार शाहजहां यूसुफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मानसहरा, खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन यूनिवर्सिटी, हज़ारा मुजफ्फराबाद मोटरवे, हस्पताल और स्कूलों के क़याम समेत मुतअद्दिद मनसूबों का इफ्तिताह किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और अवामी खिदमत का 4.25 साल से रुका हुआ अमल मुल्क भर में दोबारा शुरू होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एक ही नारा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आए और पंजाब जैसी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हो। खबरनामे में रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहां 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है।
غیر حتمی نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے وقار احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی نمائندوں کے انتخاب کے لیے پولنگ اتوار کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی. 7 میونسپل کارپوریشنز اور 838 یونین کاؤنسلز میں 35,52,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز کے لیے بلدیاتی نمائندوں کا چناؤ ایک اہم مرحلہ تھا. 6,259 میں سے 121 امیدوار شہری وارڈز اور 1,463 دیہی وارڈ سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. 1,584 امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کے بعد شہری وارڈ سے 2,780 جبکہ دیہی وارڈ سے 12,294 امیدوار مقابلے پر تھے. پولنگ کے لیے 5,226 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے. 576 مردوں کے لیے، خواتین کے لیے 562 جبکہ مشترکہ پولنگ اسٹیشن 4,088 تھے. 95% سے اوپر جو ہے پورے بلوچستان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پولنگ ہوئی ہے اور کافی جوش و خروش دیکھنے میں آیا ہے. بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں وہ سیاست کی انڈسٹری ہوتے ہیں، اسی سے جو ہے نا ہمارے جو لا میکر ہیں وہ سامنے آتے ہیں. 21,000 اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے تھے. قلعہ عبداللہ، نوشکی، چمن، تربت، سبی، نصیر آباد، دکی اور چاغی سے ووٹرز اور امیدواروں کے سپورٹرز کے درمیان تصادم کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. 1974 پولنگ اسٹیشنز کو حساس اور 2034 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری بلوچستان اور صوبائی الیکشن کمشنر سینٹرل کنٹرول روم میں مسلسل پولنگ کے مرحلے کی مانیٹرنگ کرتے رہے. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو ٹیپ عمران خان کی اصلیت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے. اپنے دعووں کے برعکس عمران خان نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے NRO مانگا. ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی گھڑی گئی. ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ 11 جماعتوں نے سیاسی بدروحوں کے علاج کی ڈیوٹی مجھ خاکسار کو دی ہے. شیخ رشید کے بیان آئندہ ماہ آئیں گے تو کسی کے کہنے پر گھر نہیں جائیں گے پر رد عمل میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ایسا بیان دینے والا خونی فساد میں دم دبا کر بھاگ گیا. دھمکیاں دینے والے اب منتیں، ترلے اور واسطے دے رہے ہیں. دوسروں کے بچوں کو سڑک پر بے آسرا چھوڑ کر باس اور چپڑاسی دونوں میدان سے بھاگ کر رسوا ہوئے. انہوں نے کہا کہ خونی مارچ بادی میں تبدیل ہو چکا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ باس زرداری صاحب کی منت ترلے کرتا ہے تو چپڑاسی دھمکیاں دیتا ہے. دونوں بنارسی ٹھگ اور سیاست کے رنگ باز ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ مہنگائی کا طوفان لانے والے اب اس پر سیاست کر کے عوام کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے پونے 4 سال کے دوران عوام کو مہنگائی اور معاشی بحران کے سوا کچھ نہیں دیا. لاہور میں وفاقی وزیر سردار ایاز صادق اور رکن صوبائی اسمبلی خواجہ سلمان رفیق سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آتے ہی آٹے کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا ہے. چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے بینر تلے خدمات انجام دینے والے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے دنیا بھر میں قیام امن، انسانی خدمت اور مثالی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ناظرین، اقوام متحدہ کی امن سپاہ میں شامل پاکستان کے 169 فوجی جوانوں نے مختلف ممالک میں انسانیت کی خدمت، قیام امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عاصم رضوان. پاکستان امن مشن میں سب سے زیادہ فوجی تعاون فراہم کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کا سفر 1960 میں شروع ہوا جب پہلی بار پاکستان آرمی کا دستہ کانگو میں امن مشن کے لیے تعینات کیا گیا. گزشتہ 61 سال کے دوران پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں شرکت کرنے والے بڑے ممالک میں شامل رہا ہے. پاکستان کے 2 لاکھ سے زائد فوجیوں نے اقوام متحدہ کے 46 امن مشنز میں حصہ لیا اور اقوام متحدہ کے بینر تلے مختلف ممالک میں انسانیت کی خدمت، قیام امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے 169 فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. Pakistan is one of our most consistent and reliable contributors to peace efforts around the world. Pakistan continues to play a crucial role in realizing this potentially historic opportunity for peace. مختلف ادوار میں اقوام متحدہ کے کئی سابق سیکرٹری جنرلز اور عالمی رہنماؤں نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. I sense great confidence and hope here today, but the feeling that overwhelms me is gratitude. Gratitude as the United Nations Secretary General
in gratitude as a global citizen for what Pakistan and her people have been doing for international peace and security. More than 100 countries contribute troops and police for United Nations peacekeeping missions. Pakistan is number one. It's impossible to speak about the history of United Nations peacekeeping without highlighting such contributions of Pakistan. I thank you very much. अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने भी अपने दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। The state becoming present, both from the point of view of security, but from the point of view of basic service of development, in an absolutely remarkable transformation. पाक फौज के साथ साथ FC रेंजर्स और पुलिस समेत खातून दस्तों ने भी आलमी अमन में खिदमत इंजाम दी। Pakistan is a leader in championing women peacekeepers and an example for other troop contributors. अक़वाम मुत्तहिदा की अमन सिपा के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अमन दस्तों की काविशों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो आलमी अमन का काबिल फख्र फर्ज निभाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों को सलाम पेश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन सिपा के आलमी दिन के मौका पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के बेटों और बेटियों ने दुनिया भर में क़याम अमन, इंसानी खिदमत और मिसाली पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अफवाज पाकिस्तान के पेशेवराना तर्ज अमल और मुश्किल तरीन हालात में मिसाली कारकर्दगी का एतराफ बाइस इफ्तिखार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को 6 दहाइयों पर मुहित अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपनी देरीना और मुसलसल शिराकत पर फख्र है। अक़वाम मुत्तहिदा यौम अमन के मौका पर दफ्तर खारजा ने अपने जारी बयान में मजीद कहा कि अमन फौजियों की खिदमत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अमन और इस्तेहकाम और ताउन के मुश्तरका नजरियात को आगे बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम जारी रखने के अपने अज़्म का इयादा करता है। रवा माह की 26 तारीख को न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने 6 पाकिस्तानियों को अमन मेडल से नवाजा। एजाज पाने वालों में मगरबी सहारा में खिदमत इंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद इब्रार, दारफुर में तैनात नाइक मोहम्मद नईम, लांस नाइक आदिल जान और लांस नाइक ताहिर इकराम शामिल हैं, जबकि ताहिर महमूद और हवलदार मोहम्मद शफीक को भी अमन मेडल से नवाजा गया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के नाम नहाद आज़ादी मार्च से होने वाले जानी और माली नुकसान ने एहतजाज के जमहूरी हक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। तफसील रिजवान आरिफ से। जमहूरी मुआशरों में एहतजाज हर किसी का बुनियादी हक है, लेकिन जब एहतजाज इंतशार की शक्ल इख्तियार कर ले तो जमहूरियत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान का बाइस बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के ऐलान ने हुकूमती हलकों को सोच विचार पर मजबूर कर दिया कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए। इक़दामात उठाए गए, लेकिन अदालती अहकामात के बाद रास्तों को खोल दिया गया। मार्च के शुरा ने नरमी का फायदा उठाते हुए सरकारी इमलाक को तो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही इस्लामाबाद में लगे खूबसूरत दरख्तों को भी आग लगा दी। आज़ादी मार्च का एक अफसोसनाक पहलू ये भी था कि जब लाहौर में एक पुलिस कांस्टेबल को PTI ओहदेदार की जानिब से शहीद किया गया तो बजाय ताज़ियत करने के इस पर बेजा तनकीद की गई और तमस्खर उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर PTI वर्कर्स आंसू गैस से मुतासिर होने की मनगढ़ंत वीडियोस बनाकर हमदर्दियां समेटने की कोशिश करते रहे। PTI के कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज की आड़ में मेट्रो बस स्टेशन समेत कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पुलिस की गाड़ियों को भी नजर आतिश किया और बाज़ मुकामात पर तोड़ फोड़ भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले पीपल्स पार्टी और JUI समेत मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकों ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 के धरने की तरह मुल्क में फसाद बर्पा करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ डाला। अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की अहम पेशरफ्त। सूबे भर में 10 किलो आटे के थैले पर 160 रुपए सब्सिडी का ऐलान। रिपोर्ट करेंगी वरदा सलीम। महंगाई का जिन होगा अब बोतल में बंद। अवामी हुकूमत का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा फैसला। सूबे भर में 10 किलो आटे का थैला 160 रुपए सस्ता कर दिया गया। अब पंजाब के हर कस्बे और छोटे बड़े शहरों में 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में दस्तयाब होगा। महंगाई के सताए हुए लोगों ने आटे की कीमत को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। 490 रुपए का जी, हमें फायदा है इसमें। अब एक बंदे को 40 किलो तक दे रहे हैं, 4 थैले मिलते हैं महीने में। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किए हैं, गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है इसमें। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है कि आटे पे इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोग हैं, घराने हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया हुआ है ये बड़ा मतलब अच्छा है। चीनी के ऊपर, घी के ऊपर,
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम की फरहमी का आगाज हो चुका है और मार्केट में सस्ते आटे की सप्लाई के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म वाजे किए गए हैं। महंगाई के दौर में आटे की कीमतों में नुमाया कमी यकीनन एक बड़ा अवामी रिलीफ है। मौजूदा हुकूमत ने आते ही महंगाई को काबू करने के लिए आटे के ऊपर 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर अवाम के दिल जीत लिए हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मसाइल के इस दौर में अवाम को तफरीह के बहुत कम मौक़े मुयस्सर आते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फिल्मी सनत को रिलीफ और सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इसके असरात क्या होंगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले मसाइल महदूद होते थे और लोग फिल्म और सकाफती प्रोग्राम से जी बहलाते थे, मगर अब माजी के बरक्स गुज़श्ता कई बरसों से निगार खाने वीरान है। जदीद दौर में लोगों को बेशुमार सहूलियात मैसर आई हैं, मगर अब जहां मसरूफियत बढ़ गई है वहीं वक्त की किल्लत के साथ तफरीह के मौके भी सिमट गए। हुकूमत ने मसले का एहसास करते हुए इसके हल की जानिब अहम कदम उठाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फिल्म एंड कल्चर पॉलिसी 2018 की बहाली का बड़ा फैसला किया है। वफाकी वज़ीर के ख्याल में पंजाबी फिल्म एक कीमती असासा रहा है जिस पर इस वक्त जमूद तारी है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिर से जान डालने के आज़म का इजहार किया। बच्चों की तफरीह के मौके भी इंतहाई महदूद हैं। मरियम औरंगज़ेब ने बच्चों के लिए तैयार होने वाले मवाद पर खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया ताकि कार्टून, ड्रामा, कहानियां और तालीम और तरबियत से मुतालिक प्रोग्राम्स की हौसला अफजाई हो। वफाकी वज़ीर ने फिल्म प्रोड्यूसर्स के वफ्द को सिनेमा घरों की बहाली, नए सिनेमा घरों की तामीर और फनकारों के लिए मुराद की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने फिल्म, ड्रामा और फ़नून लतीफ़ा के जरिए माशरे में पैदा की गई अदम बर्दाश्त और इंतशार जैसे मनफी रुझानात को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जहां ऑपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे का जोर तोड़ने के लिए हुकूमती महाज पर डटकर खड़ी हैं, वहीं वो आवाम के लिए तफरीह के मौके पैदा करने की जिम्मेदारी से भी गाफिल नहीं है। मरियम औरंगज़ेब की बड़ी खूबी ये है कि वो बेशुमार वजारती उमूर के साथ साथ हुकूमती मीडिया टीम की कप्तान की हैसियत से सियासी मुखालिफिन का झूठ बेनकाब करने के लिए हर लम्हा मुस्ताद और मुतहर्रिक नजर आती हैं। वो तमाम वज़रा और अरकान की मीडिया पर नुमाइंदगी भी यकीनी बनाती हैं। सहाफ़ियों को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए वज़ारत इत्तलात ने जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम वज़ारत इत्तलात और नशरियात के ज़ैली इदारे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद में किया। 2 रोजा प्रोग्राम में स्मार्टफोन के जरिए शहरी सहाफत के असूलों, तकनीकी सलाहियत, स्मार्टफोन के बतौर कैमरे के इस्तेमाल समेत दीगर अमूर के बारे में सहाफियों को आगाह किया गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सहाफत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की जरूरत है, जिसके लिए मोबाइल जर्नलिज्म में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद बहुत मुआवन साबित होगा। अब वो ज़माने बहुत पुराने हो चुके हैं कि आप एक वीडियो बनाएं और वो 1 घंटे में रिलीज़ हो। अब फौरी तौर पर जो खबर है, जो खबरियत है, उसकी जो स्पीड और पेस है वो बहुत जल्द हो गई है। तरबियत मुकम्मल करने वाले सहाफियों ने प्रोग्राम के इनेकाद को खुशआइन करार दिया। 2 दिनों में हमने वो कुछ सीखा जो बहुत सारे दिनों में नहीं सीखा था। सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट बड़ा इशू रहता है हमेशा। जब आप बड़े कैमरे लेके जाते हैं तो आप उस तरह शूट नहीं कर सकते। अर्जेंटली हमें जब हमारे पास कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, उसी टाइम मोबाइल में ही सारा वीडियो करके और हम चैनल को दे सकते हैं। फौरी तौर पे जिस फील्ड में मौजूद हैं वहीं पे सारी कवरेज करके 5 मिनट में सारी भिजवा सकते हैं। मोबाइल जो है आने वाले दौर में इसकी कितनी अहमियत है। इससे कबल वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने तरबियत मुकम्मल करने वाले सहाफियों को सर्टिफिकेट्स दिए और इनकी कारकर्दगी को सराहा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से हुकूमत को इस्लामाबाद बंद करने, डी चौक और सेक्रेटेरिएट पर कब्जा करने जैसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। हुकूमत तमाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रही है। तफसील फरहाना खान से।
लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह करने के साथ साथ आईनी इदारों पर भी हमले किए। उनके गलत फैसलों की वजह से ही अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रही है। ताहम हुकूमत ने फिर भी ये कोशिश की है कि अवाम पर पूरा बोझ न डाला जाए। कमर जमान कायरा ने कहा कि डायलॉग का रास्ता खुला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस से भी उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी है। इमरान खान साहब इस कौम को मायूस तो पहले ही कर चुके थे, फिर उन्होंने आइन पे, आइनी इदारों पे, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक और हल्ला बोला, लोगों को एक और ख्वाब दिखाया कि मैं ताकत के जोर पे इस हुकूमत को चलता कर दूंगा। उनके साथियों के पास लॉजिक कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने खान साहब की इस आवाज़ के साथ कुछ न कुछ चलना चाहा, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। कमर जमान कायरा ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया, ताहम वोट का तकद्दुस और सीक्रेसी बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से पैदा की जाने वाली गलतफहमियों की तरदीद करते हुए कहा कि PDM बनाने के साथ ही हमने नैब कवानीन में तरामीम का फैसला किया था। कमर जमान कायरा ने कहा कि यासीन मलिक पर ढाए जाने वाले मजालिम पर हुकूमत ने आवाज उठाई है और दफ्तर खारजा की तरफ से इस हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें मुतालबा किया गया है कि यासीन मलिक के बीवी बच्चों को उन तक रसाई दी जाए। कश्मीर के अंदर सूरत हाल दोबारा कशीदा हो रही है। यासीन मलिक साहब को जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का एक बड़ा रोशन बाब और रोशन मिनारा है, उन्होंने अपने तालिब इल्मी से ही हिंदुस्तानी तशद्दुद के ख़िलाफ़, हिंदुस्तानी इस्तबदाद के ख़िलाफ़ कश्मीरी आवाम की आवाज़ बन के वो चले हैं और हमें अपने कश्मीरी बहनों भाइयों पे फ़ख्र है। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपना खून दे के अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया है। कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत में शामिल तमाम जुमातें कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और इस हवाले से 1 जून को तमाम जुमातों की APC कर रहे हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में शुपैया में भारतीय फोर्सेस के हाथों इस्मत दरी और कत्ल का शिकार बनने वाली 2 खवातीन नीलोफर और आसिया के अहले खाना 13 साल गुजर जाने के बावजूद इंसाफ से महरूम हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने 29 मई 2009 को शुपैया में आसिया और नीलोफर को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में दौरान हिरासत कत्ल कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक बयान में इस्मत दरी और दोहरे कत्ल के इस बेईमाना वाक़े को मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों के जबरो इस्तबदाद की एक वाज़ेह मिसाल करार दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत कश्मीरी खवातीन के इस्मत दरी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा बशीर अहमद बट, अब्दुल समद इनकलाबी, जमरूदा हबीब, यास्मीन राजा, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और जम्मू कश्मीर फ्रीडम पार्टी ने अपने बयानात में कहा कि सानह शुपैया कश्मीरियों के इज्तिमाई ज़मीर पर एक संगीन हमला है। 1990 से अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती और बदसलूकी का निशाना बनाने के 11,255 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने वाशिंगटन में जारी एक बयान में हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को नई दिल्ली की एक अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की मज़म्मत की है। बयान में आलमी बिरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि वो भारतीय जेल से कश्मीरी रहनुमा की गैर मशरूत रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को एक झूठे मुकदमे में भारतीय अदालत के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लंदन से चौधरी तबरेज़ औरा की रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमा में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जिसके खिलाफ आज भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या फीलिंग्स हैं जो यासीन मलिक साहब को एक झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है। क्या कहेंगे आप? हम उनके लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं क्योंकि हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि इस सिलसिले को जो है इंडिया को रोकना पड़ेगा। आप बताइएगा, जो यासीन मलिक साहब को सज़ा सुनाई गई एक झूठे मुकदमे में, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम आज इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इंडिया को कंडेम करें जो उन्होंने यासीन मलिक और बाकी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ उनको इम्प्रिजमेंट फोर्सली किया हुआ है। पिछले 75 ईयर्स 75 साल से कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। हम इसी तरह सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो यासीन मलिक के साथ ज्यादती की गई है वो एक और इंडिया की कोशिश है फ्रीडम फाइटर्स को की आवाज़ को दबाने की। इंडिया की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह यासीन मलिक साहब वहाँ के एक लीडर थे हमारे, वो वहाँ के मुसलमानों की और तमाम कश्मीरियों की हक की आवाज़ उठाते थे, उनकी फ्रीडम की बात करते थे और उनकी इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। आप क्या कहेंगे जो यासीन मलिक साहब को सज़ा दी गई है? हम इंडियन गवर्नमेंट की मजम्मत करते हैं, मोदी सरकार की मजम्मत करते हैं जो उन्होंने हमारे प्यारे लीडर मलिक यासीन साहब को सज़ा दी है।
हम मलिक यासीन साहब के साथ हैं, फुली सपोर्ट करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर आज़ाद हो और उनको आज़ादी के मुताबिक, अपनी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया जाए, ये कहना है यहाँ भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर इन मुजाहिरीन का। चौधरी तबरेज़ और आप PTV न्यूज़ लंदन। भारतीय रियासत कर्नाटक के जनूबी जिला की मैंगलोर यूनिवर्सिटी के कॉलेज की इंतजामिया ने हिजाब पहनकर आने वाली मुतादिद तालिबात को घर वापस भेज दिया। ये फैसला कर्नाटक के वजीर तालीम के इस बयान के बाद किया गया कि कमरा जमात में सिर्फ उन तलबा को ही दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी जो यूनिफॉर्म में आएंगी। तालिबात ने हिजाब पहनकर क्लासेस में जाने पर इसरार किया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें रोक दिया। भारत के सिखों के खिलाफ 1984 में किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 साल पूरे होने के मौके पर अमृतसर शहर में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। सड़कों पर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर गाड़ियों की तलाशी भी ली गई। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हुक्म पर सिखों की इबादतगाह गोल्डन टेम्पल में जरनैल सिंह की क़यादत में मौजूद सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 1000 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द भारत पहुंच गया है। वफ्द में DG महकमा मौसमियात, महकमा आपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा का नुमाइंदा शामिल है। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे, जिसमें भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी, कैरो हाइड्रो पावर मनसूबे पर पाकिस्तानी एतराज़ात, रतेहाए और पाकल दल मनसूबों पर बात होगी। भारत रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि 118वें इजलास में सालाना रिपोर्ट फाइनल करने, चनाब पर बनाए जाने वाले भारतीय मनसूबों पर पाकिस्तानी एतराज़ात और सैलाब की पेशगी इतला के मामलात पर गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा मनसूबों के दौरे का प्रोग्राम बाद में शेड्यूल होगा। जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स आते हैं और वेस्टर्न रिवर्स आते हैं, तो उन पे एडवांस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ट्रीटी पाकिस्तान को राइट देती है कि इंडियन साइड पाकिस्तान को एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन देगी। मीटिंग्स एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ट्रीटी की प्रोविजंस के मुताबिक एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एंगेजमेंट रहे, जो कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तसलसल के लिए एक बड़ी मस्बत चीज़ है। और उन डिस्कशंस के बाद जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम उनसे कहते हैं और वो पाबंद है हमें वहाँ विज़िट कराने के। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के किसी भी वफ्द के दौरा इसराइल को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। एक सवाल पर तर्जुमान ने बताया कि मज़कूरा दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में नहीं है। तर्जुमान का कहना है कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है। इस हवाले से हमारी पॉलिसी पर मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ का हो क़याम ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना और देर पा अमन के लिए नागुज़ीर है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गर्मी की लहर जारी है और गर्मी के मौसम में अमूर खानादारी और मामूलात ज़िंदगी दीगर मौसमों के निस्बत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से शिराज दुरानी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। गुज़श्ता एक माह से जारी हीट वेव और गर्मी की हिद्दत में निस्बतन कमी के बाद आइंदा चंद रोज तक दर्जा हरारत 41 से 44 के दरमियान रहने की तवक्को है। गर्मी के मौसम में आम तौर पर घर के चूल्हे पर रोटी पकाने की बजाय तंदूर की ताज़ा और गर्मा गर्म रोटी के इस्तेमाल को तरजीह दी जाती है। गर्मी अब बहुत ज़्यादा है, घर में रोटी नहीं पकाई जाती गर्मी की वजह से। बस इधर आ जाते हैं, अच्छी रोटी होती है, बस सही मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। गर्मी बहुत है, घर वाले कहते हैं बाहर से रोटी देख लो होटल से और बैठ के खा लेते हैं। गर्मी की वजह से रोटी घर में पकाते नहीं हैं। डिजिटल दौर में बाहर जाकर खाना और दूसरी अशिया लाने की बजाय डिलीवरी बॉयज के जरिए ऑर्डर्स मंगवाने के रुझान में इजाफा हो जाता है। ज़राई शोबे से लेकर तामीराती शोबे का मजदूर तबका दोपहर और सपहर की बजाय सुबह और शाम के औकात में अमूर निपटाने को तरजीह देता है। घरों और दफातर में एयर कंडीशन के इस्तेमाल में इजाफे से बिजली की तलब में इजाफे के साथ साथ माहाना बजट भी मुतासर होता है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया भर में लोगों को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ रहा है।
वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में बारिश और हवाएं चलने से गर्मी की शिदत में कदरे कमी आई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब खान। इस्लामाबाद का नाकाबिले एतबार मौसम भी शहर इक़्तिदार का एक तारुफ है। कभी सख्त गर्मी और कभी देखते ही देखते आसमान पर छा जाने वाले काले स्याह बादलों के बाद बारिश की रिमझिम। इस्लामाबाद में तवातर के साथ होने वाली बारिशों ने मौसम काफी हद तक खुशगवार कर दिया है। एक तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप और दूसरे बारिश। इस्लामाबाद की रंगत ही तब्दील हो जाती है। हर चीज उजली उजली और निखरी नजर आती है। यूं लगता है चार सू फैली हरियाली अपनी तरफ खींच रही हो जैसे। मौसम का हाल बताने वालों ने खित्ता पोठवार में मजीद बारिशों के इम्कान को जाहिर किया है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म ही है। जैसे पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाके हैं, सिंध के ज्यादातर मैदानी इलाके हैं, बलूचिस्तान में। लेकिन इसके साथ साथ जो पोठवार रीजन है, इसमें आज शाम और के वक्त जो है वो गर्दालुद हवाएं और बाज़ मकामात पर बारिश हुई। इसी तरह कल शाम या रात के वक्त पोठवार रीजन में खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें कश्मीर के बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर तेज हवाएं और आंधी चलने की भी तवक्को है। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया भर में लोग शदीद गर्मी की लहरों, तबाहकुन सैलाबों और जंगलों की आग का सामना कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतासर होने वाला 5वां मुल्क है। महकमा मौसमियात ने जून में जरूरत से ज्यादा बारिशों के इम्कान को जाहिर किया है। गैर मामूली बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से बचाव के लिए पेशगी इकदाम करना होंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठवार में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदड़ो 49, लाड़काना, जेकबाबाद 48, दादू, शहीद बेनजीराबाद और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स CPNE के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर काजिम खान, सीनियर नायब सदर अय्याज खान, सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद समेत तमाम नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत की मजबूती के लिए नागुज़ीर है। इत्तेहादी हुकूमत मीडिया और इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और इसके फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी CPNE के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने नौमुंतखब ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। उम्मीद है नौमुंतखब ओहदेदारान मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि इमरान न्याजी ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। नारोवाल के नवाही कस्बा कला अहमदाबाद में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ताहम जल्द ही तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तालीम ही वाहिद रास्ता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने साबिका दौरे हुकूमत में तालीम और सेहत के मैदान में इनकलाबी इक़दाम किए। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान तलबा और तालबात हमारे मुस्तकबिल के मामार और जामिन हैं। मुल्क को समाजी और इक्तसादी तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए ज़रूरी है कि नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मजहब भी तालीम के हुसूल पर जोर देता है, यही तरक्की का जरिया भी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाक पतन का दौरा किया और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजर शकर के दरबार पर हाजिरी दी। दरगाह के सजादा नशीन बाबा फरीद दीवान उस्मान फरीद चिश्ती और महकमा औकाफ के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाबा फरीद गंज शकर के दरबार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि इस्लाम अमन और सलामती का सरचश्मा और इंसानों के माबैन मोहब्बत और खैर सगाली को फ़रोग़ देने वाला मजहब है। पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने कहा कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे समेत इंसानियत की खिदमत का भी दर्स देता है। दुनिया में बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देकर अमन को कायम किया जा सकता है। मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि मौजूदा हालात में बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अशद ज़रूरत है।
मुल्क में पायदार अमन के क़याम में उलमा और मशाइख नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान तारीख और मजहब के रिश्तों में बंधे गहरे दोस्त हैं। आज़रबाईजान के कौमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिल्क रोड पर मौजूद आज़रबाईजान दुनिया के बड़े एनर्जी प्लेयर्स में से एक है। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में से है जिन्होंने आज़रबाईजान को तस्लीम किया। दोनों ममालिक में दिफा, इक़्तिसादियात, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इमराज़ क़ल्ब से मुतालिक मालूमात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही के लिए आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। सेहतमंद तवाना दिल ही अच्छी जिंदगी की जमानत है। दुनिया के कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी दिल की बीमारियां अमवात की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं। अमराज़ क़ल्ब से मुतालिक मालूमात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से मुनक्किदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सदर पनाह मेजर जनरल रिटायर्ड मसूदुर रहमान कियानी समेत मारूफ तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। ज़रूरत इस बात की है कि चंद मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ऐसे असबाब जिनकी वजह से दिल की बीमारी, हार्ट अटैक और एंजाइना होता है, उनको हम कंट्रोल करें, उनको मॉडिफाई करें ताकि हम खुद भी बच सकें और अपने लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करें उनमें भी डिसेबिलिटी और डेथ कम हो सके। पहले वो काम जो चल फिर कर करते थे, पैदल चलते थे, ये फिज़िकल एक्टिविटी थी, वो एकदम बहुत कम हो गई। बीमारियों के इलाज के लिए हम जितने मर्ज़ी बड़े बड़े सेंटर खोल लें वो नाकाफ़ी रहेंगे, इसलिए कि जब तक जो बीमारी पैदा हो रही है उसको नहीं रोकेंगे तो उस वक्त तक हम इसके अगेंस्ट कामयाब नहीं हो सकते। तकरीब से खिताब करते हुए पनाह के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह घुमन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, तलबा और पॉलिसी मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना था। इसमें हम जो है ना वो लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए जो है ना वो रिकमेंडेशन तैयार कर रहे हैं कि देखें कि इस लेवल के लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन क्या है और वो रिकमेंडेशन फिर हम जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान को देंगे। तो उम्मीद है कि इस तबके में और सोशल मीडिया और आपके ज़रिए हम अवामुन्नास तक ये मुनफ़ा बख्श पैगामात और मेडिकल साइंस की जो रिसर्च है पहुंचा सकेंगे। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में दिल के अमराज में मुब्तला होने की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी और गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी है। अमराज क़ल्ब से बचाव के लिए बाकायदा जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ मतवाज़न ग़िज़ा पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े वादिया नगर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2 रोज़ा चेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद इलाके में सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देना है। तफसील बता रहे हैं नज़ाकत अली। मैं नगर के खूबसूरत सयाहती मकाम राकापोशी में मौजूद हूँ। यहाँ पर तारीख में पहली मरतबा चेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। चेरी की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं। मुकामी इंतज़ामिया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ स्टाल्स लगे हुए हैं। बहुत सारे सयाह यहाँ पे आए हुए हैं, मुकामी और गैर मुकामी सयाह मौजूद हैं जो कि यहाँ न सिर्फ चेरी के जो फेस्टिवल है इससे महजूज हो रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टाल्स में हाथ से बनी हुई अशिया के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद हैं और यहाँ पे शहद हम देख सकते हैं, हाथ से बनी हुई टोपियाँ मौजूद हैं। आज ये फेस्टिवल जो हमने रखा है इसका मकसद भी यही है कि जो नगर के अंदर जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है उसको हम शोकेस कर लें, दुनिया को और हमारे टूरिस्ट को ये बताना है कि ये टूरिस्ट के लिए पोटेंशियल मौजूद है। नगर में जो एग्रो टूरिज़्म का एक पोटेंशियल है वो हम दिखा दें। ये चीज़ें जो प्रोडक्ट हैं ये इलाके में न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ देने का बाइस बन सकती हैं बल्कि माशी तौर पर इस इलाके की तरक्की में माविन व मददगार भी साबित हो सकती हैं।